Oh. Now we will discuss about biodiversity or diversity in living world. What does it mean? Diversity mane kono variety. We understood in our last video that what are the basic characteristics or criteria of a living organism and a non-living organism. But see in the living world, look into the living world, what different varieties or different types of living organisms are found on this earth. Look into the smallest bacteria which is not at all visible to the naked eye of human being. जी कि आँखी को देखा जाऊनी से bacteria, but it can do tremendous things on this world. Look into the virus. Virus neither called as living nor called as non-living. सेटा आमे परे पढ़िबा कि काहेकि वायरस को लिविंग कि नॉन लिविंग को ना बट स्टिल इट इज हैविंग ए वेरी स्पेसिफिक रोल इन दिस लिविंग वर्ल्ड. तो लुक इनटू ए फंगी, लुक इनटू ए प्रोटोजोआ. They are very micro level, therefore they are called as microorganisms. They are unicellular, mostly bacteria and protista are unicellular, but they are having different tremendous characteristics in their life. Their lifespan is very small. But look into the higher living organism, for example plants, animals, look into the human beings. All are very different types of living organisms are found on this earth. They have no doubt last video we had discussed the 5 important characteristics. All those characteristics are found on this living world, in among all the living organisms. But among those characteristics they have also different varieties. Growth is not similar in human and bacteria and fungi and plantae. Growth is different types in human, in different animals, in plant, in fungus, in protista, in bacteria, all these things. Look into the reproduction. Reproduction is again different variety in human, in other animal, in plants, in fungus. So what we understood, living organisms are found on this earth, but they are of varieties. They have varieties of characteristics. That is what is simply in a single word called as biodiversity. This means the variety in living organisms, variety in their characteristics, variety in their behaviors, variety in their structures, all these things. So, if we want to understand a living organism very particularly, very specifically, what we need to do? We need to classify them, we need to name them according to their characteristics, according to their properties, according to their behaviors. We need to categorize them, we need to classify them, then we need to name them. For example, a simple example rame bujiba कि से गोटे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अच्छंती, गोटे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, सेठे डिफरेंट एजेस रो लोक अच्छंती, छोट पिला ठू बड़ बुढ़ा पर्यंत लोक अच्छंती. सेटा हमें किमिति कैटेगराइज करिवा? गोटे ग्रुप को हमें यंग चाइल्ड बोली कहबा, आ गोटे ग्रुप को हमें यंग बोली कहबा, आ गोटे ग्रुप को टीन एज बोली कहबा, आ गोटे ग्रुप को हमें ओल्ड एज बोली कहि कैटेगराइज करिवा. अगेन when आमे चिल्ड्रेन विल कहबा, चाइल्ड चिल्ड्रेन विल कहबा गोटे ग्रुप को, सेते बेला आमे सेठी देखे को एज रो चिल्ड्रेन, 0 to 1 एज रो, 1 to 2 एज रो, 2 इयर्स रो, 2 years to 3 years रो, 3 years to 4 years रो, इमिति आउथरे कैटेगराइज करले. अगेन जेते बेले इमिति कैटेगराइज करला परे आमे तांको अलग अलग ना देबा कि माने very small children, these are mature children, these are small teenager, these are mature teenager, these are new young ager, these are old later young ager, इमिति कैटेगरी आमे कैटेगराइज करले.
अगेन अनदर एग्जांपल नबा जिमती गोटे स्टूडेंट पॉपुलेशन अच्छी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 कॉलेज यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट्स मेडिकल स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर इन ए सिंगल प्लेस से गोटे टीचर टे जो पढ़ाई केमी पढ़ेब Is it possible to teach all the students in a single time period? Not possible at all. Before categorizing them into different category, we cannot teach these students properly. If we teach, that will be very improper pattern of teaching. तो ये हमें कौन करिया दरकार स्टैंडर्ड 1 स्टूडेंट को अलग कर दवा स्टैंडर्ड 2 स्टूडेंट को अलग कर दवा स्टैंडर्ड 3 को अलग करिया स्टैंडर्ड 4 वी नीड टू कैटेगराइज वी नीड टू क्लासिफाई एवरी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरी देन ओनली वी कैन टीच देम वी कैन अंडरस्टैंड देम वी कैन आइडेंटिफाई देम एवरीथिंग वी कैन डू अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगराइजेशन before categorization without classification we cannot do anything else. सो जिते बड़े गोटे साधारण जिनसटा आम करें बिना क्लासिफिकेशन रे किमिति लिविंग वर्ल्ड को बुझा बिना क्लासिफिकेशन रे किमिति बुझा गोटे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन डिटेल्स बिना क्लासिफिकेशन रे तो जिते बड़े भी आम लिविंग वर्ल्ड कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बुझा को चाहूचे वी नीड टू क्लासिफाई सो आवर एंसिस्टर्स आमर पूर्वज वैज्ञानिक माने आपको प्रथमे क्लासिफाई करचंदी कैटेगराइज करचंदी तापरे नेम करचंदी नेमिंग तांको प्रॉपर ना देचंती तो नोमेनक्लेचर आसिला नोमेनक्लेचर माने कोन पैटर्न ऑफ नेमिंग मन इच्छा तो ना दे दबानी ना कोन गोटे पैटर्न कोन गोटे सिस्टमैटिक वे थिबो पैटर्न ऑफ नेमिंग सिन पैटर्न ऑफ नेमिंग रे तापर आसिला कोन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आमे गोटे पॉपुलेशन को ना देले फॉर एग्जांपल सनत महांती हो कि समथिंग एल्स किसी गोटे ना है सनत महांती गोटे गोटे व्यक्तिर ना सनत हूँ तार स्पेसिफिक नेम बट महांती इज द सरनेम हेले सनत का ना महांती तार ना नहीं बट महांती मध्य रहा कहीं तार गोटे आइडेंटिटी रहिबो कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बिलोंगिंग फ्रॉम महांती फैमिली अगेन जो महांती फैमिली बोली आसुची महांती फैमिली इज बिलोंगिंग फ्रॉम वेयर फ्रॉम समवेयर एल्स दैट प्लेस इज बिलोंगिंग फ्रॉम वेयर फ्रॉम सम टाउन that town is belonging from somewhere from some district that district is belonging from somewhere from some state Odisha तो इमिति वे रे कैटेगोराइजेशन होची बट जेते बेले मते डाकिवो किए हेले सनत महांती बोली का नेम करिवो कोन सनत महांती ऑफ अरविंद नगर ऑफ बरहमपुर ऑफ गंजाम इमिति के केतल कहबो कि नो तो जेते बेले हेले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना डका हला तार दीटा ना रे डका हला सेथिपई ताको कहले कोन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट इज द पैटर्न ऑफ नेमिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कॉलिंग इट बाय यूजिंग इट्स टू नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आकु किए प्रपोज करथिले लिनेयस बोली जने साइंटिस्ट लिनेयस बोली जने साइंटिस्ट प्रपोज करथिले Carolus Linnaeus proposed the binomial nomenclature. दीटा ना अच्छी दीटा ना रे कौन गोटे हूँ जेनेरिक नेम आउ गोटे हूँ स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट विल कहीं कहला बिकॉज इट इज वेरी स्पेसिफिक टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये एग्जांपल कौन देखिया होमो सापियंस और मेंगीफेरा इंडिका और इस्चेरिचिया कोलाई Homo sapiens is the name of human माने homo is the name of genus generic name और sapiens है specific name सिनी मेंगीफेरा है generic name indica है specific name specific epithet इस्चेरिचिया है generic name कोलाई है specific epithet यार किछटा रूल्स अच्छी जेते बेले हेले आमे हैंडरिटन लिखिबा ए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को the first alphabet of generic name or genus should all the time capital letter. The first alphabet of specific epithet or specific name should all the time smaller. Though both generic name and specific name should be distinct, separately written, अलगा अलगा लिखा हबो
both are underlined separately, अलग अलग underline कराबो. These are the rules how to write binomial nomenclature. एठे आउ गोटे दीटा जिनस देखिबा. गोटे होची ICBN और होची ICZN. What is ICBN? What is ICZN? ICBN माने कौन? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. ICZN माने कौन? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. माने कौन? आमे पढ़िले बिफोर क्लास रे कि बॉटनी और जूलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट्स और जूलॉजी माने स्टडी ऑफ एनिमल्स. हेले आमे प्लांट को और एनिमल को नेमिंग देबा, नामकरण करिबा. तो अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हेले ए सब रूल्स गुडा को थिबो. को कैरेक्टरिस्टिक्स थिले ए प्लांट को ए नाडा देबा, को कैरेक्टरिस्टिक्स थिले ए एनिमल को ए ना देबा. तो ऑल दीज रूल्स, all these characteristics, all these namings are written in a systematic manner in this coding system. सेंथिबे आपको कौन कहले? so plants रो coding system अलगा अछि, जो animals रो coding system अलगा अछि. सेमिति आउरी अछि ICBN माने bacteriological international code for bacteriological nomenclature. ICVN international code for viral nomenclature. इमिति सब अलगा अलगा कैटेगरी कोडिंग सिस्टम अच्छी, रूल्स अच्छी, जो कि आम नेक्स्ट वीडियो रे टिके डिस्कशन करिबा कि आर फुल फॉर्म्स कौन, ये सब कौन. तो दीज थिंग्स इफ वी डू नॉट कीप द नेमिंग पैटर्न इन ए सिस्टमेटिक मैनर, देयरफॉर वी कैनॉट नेम एन ऑर्गेनिज्म वेरी प्रॉपर्ली. तो आम मन इच्छा क्या बोले किसी ना दे परिबा नहीं. वी नीड टू नेम एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए वेरी प्रॉपर मैनर. So these are the things. Now we will see what is taxonomy. आमे बुझिले nomenclature कौन है कौन. एबे taxonomy होची गोटे स्टडी, गोटे पाठ. सेटे कौन करूचे आमे? टेक्सो माने कौन? अरेंज्ड. नेमी माने कौन? नेमिंग. हेले टेक्सॉन रु आसीची. टेक्सॉन माने अरेंज्ड और कैटेगरी. गोटे अरेंज्ड कैटेगरी को कौन कहले? टेक्सॉन बोली कहले. हेले ए जो अरेंजमेंट करा हला अकॉर्डिंग टू नेमिंग, ना अनुसार तांको अरेंज करा हला कि न हले तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स अनुसार तांको ना दिया हला. ए सब जो सिस्टमेटिक वे रे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग वर्ल्ड को नेम करा गला आ ताको कैटेगोरीज रे रखा हला. दीज आर ऑल वी आर अंडरस्टैंडिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी. सिस्टमेटिक्स कौन? सिस्टमेटिक्स रे मध्य आमे लिविंग ऑर्गेनिजम्स गुडा को अरेंज करूचे, सिस्टमेटिक वे रे ताकू नेम करूचे, कैटेगोराइज करूचे. बट एइटे आउ टिके एक्स्ट्रा एस्पेक्ट रहिबो कोन? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. माने कोन कि आज जेतिक सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड रे अछंती, फॉर एग्जांपल ह्यूमन अछि कि आउरी बहुत किछि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती, डू दे बिलोंग at the first time on this earth? No. जत्ते बड़े पृथ्वी रे, वर्ल्ड रे, अर्थ रे जत्ते बड़े लाइफ स्टार्ट हला कोन इमिदिका हितला कि आज जहा अछि? नो. आज जहा हिछि गोटे इवोल्यूशन रे, विवर्तन अनुसार, इवोल्यूशन ग्रेजुअली लाइफ इंक्रीज करिछि, डेवलप हेछि. लाइफ स्टार्टिंग रे एमिति नथिला. तो स्टार्टिंग रे को ऑर्गेनिज्म आसिला, तापरे सेमानंगठु आउरी को ऑर्गेनिज्म डेवलप हेले, तापरे सेमानंगठु आउरी को ऑर्गेनिज्म डेवलप हेले. तो एमानंगर एमंग ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स कौन से रिलेशनशिप अच्छी, ए सब जिनस विषय आम पढ़ा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सब जिनस कोड पढ़ा आम सिस्टमेटिक्स रे. तो टैक्सोनॉमी रे आम कौन करूचे कि अरेंज्ड पैटर्न ऑफ नेमिंग अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. आम सेटा पढ़ुचे टैक्सोनॉमी रे. तो सिस्टमेटिक्स रे कौन करूचे? What are the relationship, evolutionary relationship? What are the according to their characteristics, features of different living organisms? तापर देखिए आमे कौन? taxonomical hierarchy. taxonomical hierarchy. hierarchy माने कौन? either descending order नहल तो ascending order. छोटरू बड़ क्रम नहल तो छोटरू बड़ क्रम नहल तो बड़रू छोटो क्रम, ताको हेरार्की बोली कहते हैं. टेक्सोनोमिकल हेरार्की अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो आम अलग अलग कैटेगोरी रे रखिले ताको को टाइप रो छोटो बड़ क्रम रखे. फॉर एग्जांपल कि एबे स्टूडेंट्स बहुत गुड़ा स्टूडेंट्स अच्छी आम ताको स्टूडेंट रो हेरार्की रे रखिबा.
टीचिंग तांकर एकेडमिक हायरार्की रे रखिबा बोले किमिति स्टैंडर्ड 1 को तळे रखिले स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 तापरे स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड इमिति टिल स्टैंडर्ड 10th मेट्रिकुलेशन पर्यंत तापरे +2 11 12th तापरे +3 इमिति तो आम ग्रेजुएशन तापर पोस्ट ग्रेजुएशन एमती आम हायरार्की रे रखुचे तो स्टैंडर्ड 1 रु 10th पर +2 पर +3 ग्रेजुएशन तापर पोस्ट ग्रेजुएशन एटा कौन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हायरार्की तापर डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सिमिति पोस्ट ग्रेजुएशन तापर ग्रेजुएशन तापर +2 तापर स्कूलिंग मेट्रिकुलेशन एमती कि आम तलक आसचे दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की एकेडमिक हायरार्की सिमिति जेतेबेले टोटल लिविंग वर्ल्ड को भाग कराला क्लासिफाई कराला फर्स्ट किंगडम रे क्लासिफाई कराला लिविंग वर्ल्ड को प्रथमे किंगडम रे आमे आगो को पढिबा किमिति क्लासिफिकेशन हेछि हमर सेकंड चैप्टर रे अछि क्लासिफिकेशन तो लिविंग वर्ल्ड को प्रथमे को कैटेगरी रखाला प्रथमे लिविंग वर्ल्ड क्लासिफाई हला किछटा किंगडम रे तापर प्रत्येक किंगडम रे किछटा फाइलम और डिवीजन रहिला प्रत्येक फाइलम और डिवीजन रे किछटा ऑर्डर रहिला प्रत्येक क्लास रे सॉरी फाइलम डिवीजन रे किछटा क्लास रहिला क्लास तळकू किछि ऑर्डर रहिला और गोटे ऑर्डर किछटा ऑर्डर रे किछटा फैमिली रहिला गोटे फैमिली रे किछि जीनस रहिला गोटे जीनस रे किछि स्पीशीज रहिला यार गोटे वेरी सिंपल एग्जांपल रे हमें बुझिबा हाउ फॉर एग्जांपल दिस वर्ल्ड इज क्लासिफाइड इनटू सम कॉन्टिनेंट किछि महादेश रे क्लासिफाई हेछि तापर गोटे कॉन्टिनेंट किछरा सब कॉन्टिनेंट रे क्लासिफाई हला फॉर एग्जांपल होल वर्ल्ड किछटा कॉन्टिनेंट रे हला से भितर एशिया होची गोटे कॉन्टिनेंट गोटे एशिया कॉन्टिनेंट रे केते गुडा का सब कॉन्टिनेंट अछि से भितर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज वन सब कॉन्टिनेंट गोटे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे किछटा कंट्री अछंती से भितर इंडिया होची गोटे कंट्री गोटे इंडिया कंट्री रे किछटा स्टेट अछंती से भितरु ओडिशा होची गोटे स्टेट ओडिशा स्टेट रे केते बडा डिस्ट्रिक्ट अछि से भितरु गंजाम होची गोटे डिस्ट्रिक्ट गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे केते गुडा को ब्लॉक अछंती से भितरु फॉर एग्जांपल बरहमपुर गोटे ब्लॉक रे आसिला से भितर टाउन रे आसिला से भितर आउरी किछि गुडा को पंचायत अछंती ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत अछंती ग्राम पंचायत और किछटा वार्ड अछि किछटा वार्ड रे किछटा फैमिली अछंती गोटे फैमिली रे किछटा फैमिली मेंबर्स अछंती से फैमिली मेंबर भितर गोटे होची सनत महांती हेले व्हेन वी रीच टू एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल सनत महांती हाउ वी कम फ्रॉम वर्ल्ड टू सनत महांती इन ए हायरार्की लेवल पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर रे किमिति वर्ल्ड रु एशिया रु इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया ओडिशा थी गंजाम बरहमपुर अरविंद नगर फर्स्ट लेन सिमिति गोटे पर्टिकुलर हाउस नंबर 46 से भीतर किछना मेंबर्स अछन से भितरु सनत महांती इज वन पर्सन तो सनत महांती सनत होची स्पेसिफिक नेम महांती होची जेनेरिक नेम फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग तो महांती फैमिली इज बिलोंगिंग फ्रॉम अरविंद नगर फर्स्ट लाइन बिलोंगिंग फ्रॉम बरहमपुर बिलोंगिंग फ्रॉम गंजाम बिलोंगिंग फ्रॉम ओडिशा बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया बिलोंगिंग फ्रॉम एशिया बिलोंगिंग फ्रॉम वर्ल्ड सी आई हैव shown you the descending order and the ascending order of a particular citizen on this world. In the same way, we can categorize the living organisms from living world to Homo sapiens, from Homo sapiens to living world. So kingdom, phylum division, class, order, family, genus, species. These are the taxonomical hierarchy of the whole living world. In this pattern or manner, we can categorize, classify and identify every living organisms in a very systematic or arranged manner. आमे जदि ए हायरार्की को मन रखिबार अछि तार शॉर्ट फॉर्म कोन केपीसी ऑफ जीएस जदि आमे मन रखिले
then we can easily remember the sequence of these categories. नहले आमर confusions कौन हबो kingdom पर class कह दवा class पर phylum कह दवा तो there will be a confusion. आकु तो आमे मूर्ख भलिया घोषिल हबनी गोटे ट्रिक रे आको मन रखिया कोन केपीसी ऑफ जीएस. whenever you look into this topic you first look into KPC of GS. K for kingdom, P for phylum or division, C for class, O for order, F for family, G for genus, S for species. These are the sequence.